Assalamu alaikum. This is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is Operations Management 10th edition by J. Heiser and Barry Randall. Before starting today's lecture, let me give you a summary of what we have done so far. In the last lecture, we have discussed, or rather we have finished the 4th chapter of the book, which is forecasting. We discussed in that chapter what is forecasting, what are the different strategic importance of forecasting, what are the different steps in forecasting any demand or forecasting any variable. We also discussed what are the different approaches of forecasting, like quantitative and qualitative. We also discussed individually the different techniques in qualitative forecasting. Then we discussed in detail the quantitative types of forecasting. Then we discussed different time series forecasts, associative forecasts, regression method and correlation analysis. And in the last part of the lectures, we discussed how can we monitor and control our forecasts by using a tracking signal which can tell you that our forecasting model is working or not working. Either it requires adjustment or it doesn't require any adjustment. Then we finished in the last chapter, then we did some exercise problems related to forecasting. So today I will start this lecture with some more problems from the previous chapter of forecasting, and then we will move to our new chapter which we will discuss today. So let us start today's lecture by an exercise problem of the previous chapter. You have this problem in your book under 4.32. You have some data that there are some sales in dollar amount, there is the number of guests, and there is the week कि जी किस वीक में, फर्स्ट वीक में 16 गेस्ट ने इतने डॉलर्स का कोई कंजम्पशन की, इसी तरह सेकंड वीक में 12 गेस्ट ने इतनी $270 की कंजम्पशन की, थर्ड वीक में 18 गेस्ट ने $380 की कंजम्पशन की, इसी तरह फोर्थ वीक में 14 गेस्ट ने $300 की कंजम्पशन की. अब किसी भी चीज़ की कंजम्पशन हो सकती है आपकी बुक में, क्योंकि it's an international edition, so they have given example of a bar, but you can take any sort of example. You can take any sort of example from restaurants. आपने इस वीक में इतने गेस्ट ने इतने रुपयों की कंजम्पशन की. either it can be food consumption or it can be beverage consumption. तो आप इस प्रॉब्लम को किसी भी सिनेरियो के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो. अब वो पूछना चाह रहे हैं, अभी तक तो हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं चैप्टर 4 की फोरकास्टिंग की, उसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे पास अगर हम लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं या रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे होता था वो तो टाइम होता था, और वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई सेल्स होती थी, कोई इसी तरीके के डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते थे. हम कहते थे कि जी टाइम तो इंडिपेंडेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रही हैं, सेल्स डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको वाई पे. तो अब इसके अंदर कहा है कि परफॉर्म अ लीनियर रिग्रेशन दैट रिलेट्स बार सेल्स टू गेस. अब ये कह रहा है कि जी मुझे ऐसा रिग्रेशन एनालिसिस करके दो जिससे मुझे जो गेस्ट्स हैं उनका और जो सेल्स हैं उनका रिलेशनशिप पता चल जाए. इसके अंदर इट्स नॉट, आप ये नहीं देखना चाह रहे कि जी
5वें वीक में कितने आएंगे। आप इसके अंदर ये देखना चाह रहे हो कि अगर मेरे होटल के अंदर इतने गेस्ट आते हैं तो मेरी सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने देखना है कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा और इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कह रहा है, यू हैव टू रिलेट बार सेल्स टू गेस्ट्स, कि जी अगर गेस्ट बढ़ जाए तो बार सेल्स कितनी होगी, अगर गेस्ट कम हो जाए तो बार सेल्स कितनी होगी। आपको रिग्रेशन एनालिसिस की अगर इक्वेशन याद हो तो वो ऐसे थी, a प्लस बी एक्स। अब इसके अंदर x चेंज होगा तो ये चेंज होगा, गेस्ट्स कम होंगे तो गेस्ट कम होंगे तो बार सेल्स भी कम होंगी, गेस्ट ज्यादा होंगे तो बार सेल्स भी ज्यादा होंगी। तो जो बार सेल्स हैं इसके अंदर वो आपकी क्या है, और गेस्ट आपका क्या है। इसके अंदर बार सेल्स आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स और गेस्ट जो है दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये बात हो गई जब हमने इसका एक रिलेशनशिप इधर निकाल लिया y कैप a प्लस बी एक्स का, इफ द फोरकास्ट इज फॉर 20 गेस्ट्स नेक्स्ट वीक। ठीक है, आप एक रिग्रेशन मॉडल बना लो कि जी गेस्ट और सेल्स का क्या रिलेशनशिप है। दूसरा आप रिग्रेशन एक रिलेशनशिप बना लो कि वीक्स और गेस्ट का क्या है। जब दूसरा रिलेशनशिप आप बनाओगे कि वीक्स हर वीक के हिसाब से कितनी गेस्ट आ रहे हैं, तो वो आप उसके अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट जो होगा वो वीक्स होगा और गेस्ट डिपेंडेंट बन जाएगा। मगर हमारी प्रॉब्लम के अंदर बार सेल्स आर डिपेंडेंट और जो गेस्ट हैं दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है या आप क्या रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हो। उसके अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स फिर हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इफ द फोरकास्ट इज फॉर 20 गेस्ट्स नेक्स्ट वीक, व्हाट आर द सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी। अब आपके पास हमने एक रिलेशनशिप निकाल लिया है जिसके अंदर गेस्ट्स और बार की सेल्स हैं, तो अब हम उसके अंदर x की वैल्यू डालेंगे, नंबर ऑफ गेस्ट अगर हम 20 रखेंगे तो हमारे पास बार सेल्स आ जाएंगी कि जी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। सबसे पहले आपके पास इधर हम कह देते हैं गेस्ट को हम कहते हैं कि जी दे आर रिलेटेड विद x। आपने इस पॉइंट पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं ना, इसलिए बार सेल्स आपके पास y से रिप्रेजेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं इसके अंदर, लेट मी राइट इट, 16 गेस्ट से तो बार सेल्स 330 की थी। आपके पास 12 गेस्ट से तो बार सेल्स आपके पास 270 की थी। आपके पास 18 गेस्ट से तो बार सेल्स आपके पास 380 की थी। इसी तरह आपके पास 14 गेस्ट थे तो बार सेल्स आपके पास $300 की थी। अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगी, इसका स्क्वायर लेंगे तो 256 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लोगे तो 144, इसका आपने स्क्वायर लिया 324 और इसका आपने 14 का स्क्वायर ले लिया तो आपके पास 196 आ गया। ठीक है, अब हमने एक्स वाई भी निकालना है। एक्स वाई किस तरह से निकालेंगे, आप x को जब मल्टीप्लाई करो, इस वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपके पास एक्स वाई आ जाएगा। तो इसके अंदर 5280 आपके पास पहले का आ रहा है, दूसरे का आपके पास 3240 आ रहा है, तीसरे का आपके पास 6840 आ रहा है और चौथे का आपके पास 4200 आ रहा है। तो ये अब हमने वैल्यूज डिफरेंट निकाल ली। अब हम रिग्रेशन एनालिसिस में हमने
ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। ए और बी के फार्मूलाज अगर आपको याद हो, ए और बी के फार्मूलाज आप स्लाइड में जाके देखें, मैं आपको इसके अंदर मैं रिविजिट नहीं करूंगा इनको, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मगर ये फार्मूलाज आपके पास स्लाइड्स के अंदर दिए हुए हैं। उसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज़ चाहिए। वैल्यूज़ हम देखते हैं जी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनता है। इन सारी वैल्यूज़ को जब आप सम अप कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 920। इसी तरह समेशन ऑफ एक्स क्या बनता है, समेशन ऑफ एक्स इज़, इन सारी वैल्यूज़ को आप एड अप कर लें, तो ये इधर हम एड अप करेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी अबाउट 60। इसी तरह हमने समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को जब आप एड अप करोगे तो दैट विल गिव यू व्हाट, समेशन वैल्यू विच इज़ अबाउट 1280। और जब आप इन सारी वैल्यू को एड अप करोगे तो दैट विल गिव यू अ समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपके पास x इंटू वाई है, आप इनको एड अप करना शुरू कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 19560। ठीक है, अब हमने एडिशनल एक दो वैल्यूज और निकालनी है। अगर आपको याद हो तो हमने x बार मीन वैल्यू ऑफ x भी निकालनी है। x बार किस तरह निकलेगी, जब हम इसको डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1 2 3 4, चार वैल्यूज थी है ना, तो n की वैल्यू इसके अंदर 4 है, तो वो आपके पास ऑलमोस्ट 15 आ जाएगा x बार की वैल्यू। y बार की क्या वैल्यू होगी, मीन वैल्यू ऑफ y, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये y बार की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू अबाउट 320। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को जब हम रिग्रेशन एनालिसिस के फॉर्मूला में डालेंगे तो b की वैल्यू हमने निकालनी है। b की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास, आई विल जस्ट राइट द वैल्यूज़, जो फॉर्मूला है आपके पास स्लाइड्स के अंदर दिया हुआ है, पहले भी मैंने आपको पिछली प्रॉब्लम के अंदर भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। अब आपने इसको वैल्यूज़ डालनी है सारी अंदर जो हमने कैलकुलेट की हैं, उसके अंदर ये वैल्यूज जब आपने डाल ली तो फिर आपके पास एक b की वैल्यू आएगी विच इज अबाउट दिस, और वी विल हैव 15 स्क्वायर एंड योर वैल्यू विल बी, इससे जब आप कैलकुलेट करोगे तो b की जो वैल्यू है दैट विल बी अबाउट 18। ठीक है, ये आपने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम a की वैल्यू जो फॉर्मूला, आई थिंक a का जो फॉर्मूला है वो y बार माइनस b इंटू एक्स बार है। y बार की क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, इट इज़ अबाउट 320। आपने इसके अंदर b की वैल्यू जो हमने अभी पिछले स्टेप से निकाली है वो हम इसके अंदर डालेंगे। x बार की क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज़ अबाउट 15, वो हम इसके अंदर डाल के सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो हमारे पास a की जो वैल्यू है दैट विल बी अबाउट 50। ठीक है, तो हमारे पास अब इक्वेशन के लिए जो हमें a और b की रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने निकाल लिया। अब हम इन दोनों को यूज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या रिलेशनशिप आ गया कि अगर आपके गेस्ट इतने आएंगे, लेट्स से कि 20 आते हैं, तो आपकी सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड है। इट इज़, इसीलिए इस पे ये कैप लगी हुई है कि इट इज़ एन एक्सपेक्टेड या फोरकास्टेड वैल्यू, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। इसके आसपास आ सकते हैं। वो विंडो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि इतनी आ सकती है, इतनी आ सकती है, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो एस की वैल्यू हम निकालते थे, ये आपको मीन वैल्यू दे रहा है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है, और अगर आप कोई विंडो निकालना चाहते हो तो फिर उसमें आप स्टैंडर्ड एरर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो आपके पास आ जाएगी विंडो। ठीक है, तो अब हम रिलेशनशिप लिखते हैं y बार y कैप जो है आपके पास दैट इज अराउंड
ए प्लस बी एक्स। अब आपके पास ए इसके अंदर जो थी दैट वाज अबाउट 50, बी की जो वैल्यू थी वो 18 और ये एक्स। अब ये आपको क्या बता रहा है कि जी कितनी बार सेल्स होंगी, और ये नंबर ऑफ गेस्ट बता रहा है, नंबर ऑफ गेस्ट और बार सेल्स का इसने एक रिलेशनशिप बता दिया। अब जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि मुझे बार सेल्स बताओ अगर 20 गेस्ट्स आ जाएं 5वें हफ्ते में, तो ये 50 प्लस 18 इंटू 20, आप जब इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि जी यू कैन एक्सपेक्ट $410 ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर रिलेशनशिप, हमने पहला स्टेप क्या था, हमने प्रॉब्लम के अंदर पहला स्टेप ये था कि हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फाइंड करने थे। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करते हैं कि जी आपसे क्या चीज मांगी जा रही है। इस केस में हमसे मांगी जा रही थी कि जी गेस्ट्स जो हैं उनका सेल्स के साथ रिलेशनशिप बनाओ। हमें गेस्ट का अगर हम गेस्ट्स की वैल्यू डालें तो हमें सेल्स पता चल जानी चाहिए। तो हमने यही किया कि जी जो एक्स की वैल्यू है फिर हमने इंडिपेंडेंट रखी, क्योंकि हमसे रिलेशनशिप ऐसा मांगा जा रहा था। अगर हमें कहा जाता कि टाइम के साथ रिलेट करो कि जी अगले हफ्ते में कितने गेस्ट्स एक्सपेक्टेड है, अगर ये प्रॉब्लम होती तो फिर हमारा पहला स्टेप होना था, हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करने थे। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हमने सेलेक्ट करने हैं तो प्रॉब्लम ये है, अगर हमें ये कहा जाता कि अगले हफ्ते में कितने गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं, तो उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट पे टाइम रखते या वीक रखते, और डिपेंडेंट जो होता वो गेस्ट हो जाता। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम कि जी सवाल क्या, किस चीज की हम एसोसिएशन या रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हम सेलेक्ट करते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उनसे फिर हम ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। उन ए और बी की वैल्यू को हम इस रिलेशनशिप में डाल देते हैं और फिर हमारे पास एक फोरकास्ट आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 4 की प्रॉब्लम्स भी हमने चैप्टर 4 के डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स थी, जो डिफरेंट एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स थी, हमने वो डिस्कस की। हमने एक एक करके उसको देखा कि जी अगर आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फोरकास्टिंग की, उनको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या मैं एक चीज़ को फिर से रिट्रेट कर देता हूँ कि जी हमने जो चैप्टर 4 के अंदर फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं, ख़ासतौर पे क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स, उसके अंदर हमने साइक्लिकल कंपोनेंट को मेजर करने की कोई टेक्निक नहीं पढ़ी। हमने या तो टेक्निक्स पढ़ी हैं कि जी आप रैंडम कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करें या उसका जो इफेक्ट है उसको कम करें, हमने सीजनल कंपोनेंट को स्टडी किया है और हमने ट्रेंड को स्टडी किया है। हमने साइक्लिकल कंपोनेंट को नहीं इतना डिटेल में देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऑफ कोर्स साइक्लिकल कंपोनेंट की जो टाइम विंडो है 10 to 15 ईयर्स या 7 to 10 ईयर्स, ये हमारे पास नॉर्मल फोरकास्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं होती और हम इकोनॉमिक फोरकास्ट के अंदर इसको यूज़ करते हैं। और साइक्लिक फोरकास्ट के तरीके डिफरेंट होते हैं, दे आर मच मोर एडवांस, दे रिक्वायर मच मोर इंफॉर्मेशन, दे रिक्वायर मच मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज। तो इसलिए हमने एट दिस स्टेज जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि जी हमने प्रोडक्शन को, हमने ऑपरेशंस को, हमने स्केजुलिंग करनी है, हमने प्लानिंग करनी है, तो हमारी इन प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स में साइक्लिकल कंपोनेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि जी रैंडम कंपोनेंट को किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, ट्रेंड को किस तरीके से फोरकास्ट करना है, सीजनैलिटी को किस तरीके से फोरकास्ट करना है, वो हमने यही चीज़ें हमें स्केजुलिंग और फोरकास्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स इनकी यही होती है। इसके अलावा हमने एसोसिएटिव फोरकास्टिंग पढ़ ली है, हमने फोरकास्टिंग को मॉनिटर और कंट्रोल करने का तरीका पढ़ लिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी आपने एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग जब की है,
अल्फ़ा और बीटा आपने जब इस्तेमाल अप्लाई एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेलेक्ट कर ली है, तो अब आपने उसको मॉनिटर भी करना है। तो वो मॉनिटर जो करने का तरीका है वो हमने ट्रैकिंग सिग्नल के ज़रिए से देखा है कि जी अगर ट्रैकिंग सिग्नल एक ख़ास लिमिट के अंदर आ रहा है तो आपका मॉडल चल रहा है, अगर आपका ट्रैकिंग सिग्नल एक ख़ास लिमिट के अंदर नहीं आ रहा तो फिर आपका मॉडल सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग के केस में भी नहीं, आप बाकी टेक्निक्स के अंदर भी आप ट्रैकिंग सिग्नल लगा सकते हो और आप अपनी फोरकास्टिंग टेक्निक को मैयर कर सकते हो कि जी ये सही चल रही है या मुझे कोई और फोरकास्टिंग अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम फोरकास्ट को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर रिग्रेशन एनालिसिस हैं, ट्रेंड एनालिसिस हैं, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। अब आपने रिग्रेशन एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस के अंदर एक अगर पॉइंट एस्टिमेट लेना है तो वो तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट पर निकालने के लिए हमारे पास वाई कैप की वैल्यू आ जाती है। अब आपने इंटरवल एस्टिमेट लेना है कि जी हमें पॉइंट एस्टिमेट तो पता चल गया वो वाई बार है, अब इंटरवल हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट लेते हैं जो हमें बता देता है कि जी कितनी प्रोबेबिलिटी से कितनी मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी मिनिमम वैल्यू है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इस सारा प्रोसेस जो हम हाथ से कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर ये भी बताया था कि किस तरीके से आप एक्सेल यूज़ करके इस प्रोसेस को कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हमने क्या देखा था, एक्सेल के अंदर हमने ये देखा था कि हम उसके अंदर पहले जाते थे डाटा एनालिसिस करने के लिए। डाटा एनालिसिस के अंदर हम डाटा एनालिसिस के अंदर फिर हम रिग्रेशन एनालिसिस करते थे। रिग्रेशन एनालिसिस में वो हमसे पूछता था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताओ, तो फिर उसके बाद वो आपको एक ही वैल्यू दे देता था, इंटरसेप्ट की वैल्यू। इंटरसेप्ट क्या है आपका, वो ए की वैल्यू है ना, और आपके पास एक और उसी के नीचे एक और वेरिएबल की वैल्यू दे देता था, और वेरिएबल वो क्या था, वो बी था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फौरन ये दोनों वैल्यूज दे देता था, जो हम हाथ से निकालते हैं वो आपको 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करके निकाल देता था। अब अगर आपके पास डाटा कम है तो ओके, यू कैन डू इट विद हैंड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप जाके एक्सेल से इसको ट्राई करें, क्योंकि नॉर्मली जो प्रैक्टिकल डाटा होता है वो 4 या 5 नहीं होता, वो 20-25 एंट्रीज होती हैं, तो उनको हाथ से कैलकुलेट करना इट इज़ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। बेहतर यही है कि जी आप जाके उसको एक्सेल के अंदर डालो, जल्दी से उसको सॉल्व करो और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए था कि यू नो कि किस तरीके से एक ट्रेंड प्रोजेक्शन की जा सकती है या रिग्रेशन एनालिसिस किया जा सकता है। इसके साथ हमारा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया। अब एट दिस स्टेज हमने अभी तक जो पढ़ लिया ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर, हमने देख लिया कि जी कैसे आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट का क्या फ़ायदा है, ठीक है। हमने ये देखा कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ऑपरेशन मैनेजर के क्या डिसीजंस होते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा, हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज देखी कि जी ये स्ट्रेटजी लगानी चाहिए अगर आप ग्लोबलाइज कर रहे हो तो आपको कौन सी फ्रेंचाइजिंग करनी है, क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्शन को दूसरे मुल्क में लेके जाना है या आपने अपनी कॉम्पिटेंस या कोर कॉम्पिटेंस को दूसरे मुल्क में लेके जाना है। तो हमने ये भी देखा था कि जी अगर आप ग्लोबलाइज कर रहे हो तो ऑपरेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था कि जी जो पहला काम हमने, जो पहला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन या पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने किए थे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे किए थे कि किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है। हमने उसमें बहुत सारी टेक्निक्स देखी थी, क्रिटिकल पाथ मेथड देखा था, CPM, PERT देखा था,
गैंट चार्ट देखा था और हमने बताया था कि जी किस तरीके से हम प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने क्रैशिंग करनी हो, उसको जल्दी ख़त्म करना हो या देर हो गई है उसको ऑन टाइम ख़त्म करना है, तो हम क्या कर सकते हैं। क्रैशिंग की एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, ज़्यादा पैसे लगा के हम ये भी देख सकते थे कि प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है और अगर हम उसे क्रैश करेंगे तो एडिशनल कॉस्ट हमारी कितनी लगेगी। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस कर ली थी। और फिर उसके बाद हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 के अंदर हमने फोरकास्टिंग देखी, किस तरीके से आप फोरकास्ट कर सकते हो डिमांड को, किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो और किस तरीके से आप डिफरेंट सर्विसेज को प्लान कर सकते हो। स्केजुलिंग के लिए आपके पास जो पहली इनपुट होनी चाहिए कि जी कितनी डिमांड एक्सपेक्टेड है, वो हमने डिफरेंट तरीके देखे कि हम किस तरीके से फोरकास्ट कर सकते हैं। अब जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो क्वालिटी से रिलेटेड है कि किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो, किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हो। ये चैप्टर जो है आपकी बुक के अंदर टोटल जो क्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपकी बुक के अंदर 2 चैप्टर्स के अंदर है। ये चैप्टर 6 है जो क्वालिटी की थ्योरेटिकल पार्ट बताता है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहा होता है कि जी ये वाला चैप्टर 6 जो है इट विल टेल यू दी थ्योरेटिकल पार्ट, और इसी का ये एक एडिशनल चैप्टर बनता है जिसका 6S या 6 सप्लीमेंट। उसके अंदर हम प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम देखेंगे क्वालिटी की, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं या किस तरीके से न्यूमेरिकली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी का जो टॉपिक है वो आपकी बुक में 2 चैप्टर्स के अंदर है, एक 6 और एक 6S। इसके अंदर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखेंगे, डिफरेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे क्वालिटी के, और फिर हम 6S के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी देखेंगे जो जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आएंगी और वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन। चलें फिर इसकी आउटलाइन देखते हैं कि जी इस आज के लेक्चर के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको बताएंगे कि क्वालिटी किस तरीके से स्ट्रेटेजी पे अफेक्ट करती है। क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी किस तरीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको उससे नुकसान क्या होगा। फिर हमने देखनी है कि हम किस तरीके से क्वालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्वालिटी को डिफ़ाइन करने से उससे क्या फ़ायदे या नुकसान हमें होंगे। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करते हैं या अपनी सर्विस की क्वालिटी अच्छी करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। फिर हम कुछ क्वालिटी अवार्ड्स देखेंगे, उनके क्राइटेरियाज देखेंगे, किस तरीके से वो क्वालिटी को जज करते हैं और क्वालिटी को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि जी एक मैल्कम बॉल्ड्रिज क्वालिटी अवार्ड है, वो किस तरीके से क्वालिटी को जज करता है। दिस इज़ एन अमेरिकन क्वालिटी अवार्ड, किस तरीके से वो क्वालिटी को जज करता है और एवेल्युएट करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जी क्वालिटी इम्प्लीमेंट करने की कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं। ये कॉस्ट हम देखेंगे कि जी किस तरह का अगर आप कहते हो कि मैंने क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है या मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी है तो किस तरीके से आपको किस तरह कॉस्ट आपको हाउ मच विल इट कॉस्ट और कौन कौन सी कॉस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम ये भी देखेंगे कि जी एथिकल इश्यूज क्या हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। नॉर्मली आपके पास जो पाकिस्तान के अंदर भी हमें नज़र आता है वो ISO 9000 है, ठीक है। और दूसरा जो हमें अभी इंटरनेशनल लेवल पे नज़र आ रहा है मगर पाकिस्तान के अंदर इतना नज़र नहीं आ रहा, इट इज़ ISO 14000। इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट जो ये वाला स्टैंडर्ड है दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन सर्विस, किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्शन को डॉक्यूमेंट करना है, ऑडिट करना है, उसको मैं जो डिफरेंट उसकी आउटपुट है उसको किस तरीके से लेबल करना है। ये सारी चीज़ें ISO 9000 में बताया जाता है मगर ISO 14000 के अंदर ज़्यादातर एम्फेसिस एनवायरनमेंट की तरफ है।
ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर 6 के अंदर फिर हम देखेंगे कि जी TQM क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किन किन सब कैटेगरीज से हम देख सकते हैं लिटरेचर के अंदर। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सारे एस्पेक्ट्स, जो भी आपकी सर्विस या आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर आपने सारी सर्विसेज के अंदर, सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्वालिटी इम्प्लीमेंट करनी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की है, 6 सिग्मा की है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, बेंचमार्किंग, जस्ट इन टाइम, तगुशी कॉन्सेप्ट्स, और कुछ ना कुछ और टूल्स हैं TQM के जो हम देखेंगे। तो अगर आपने क्वालिटी इम्प्लीमेंट करनी है और आप चाहते हो कि आप अपनी टोटल कंपनी के अंदर या टोटल सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अंदर क्वालिटी इम्प्लीमेंट करो, तो डिफरेंट तरीके हम देखेंगे कि किस तरीकों से आप क्वालिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक एस्पेक्ट के लिए यूज़ होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे एस्पेक्ट के लिए यूज़ होंगी। हम फिर देखेंगे टूल्स ऑफ क्या है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये ऐसे टूल्स हैं जिससे आप क्वालिटी को डॉक्यूमेंट कर सकते हो, क्वालिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस है उसको मॉनिटर करना चाह रहे हो तो इनमें इन्हीं प्रोसेसेस में से, इन्हीं जो टूल्स में से आप यूज़ करोगे। अगर आप किसी प्रोसेस को बेहतर करना चाह रहे हो तो फिर इन्हीं टूल्स की मदद लोगे। तो ये ओवरऑल ग्लोबल टूल्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के जो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर पहली आपके पास चेक शीट्स हैं। चेक शीट्स क्या होती हैं ये बेसिक हम आगे भी पढ़ेंगे, मगर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर किया जा रहा होता है कि इस प्रोसेस से क्या आउटपुट निकल रही है, सही निकल रही है, गलत निकल रही है, अच्छी निकल रही है, बुरी निकल रही है। स्कैटर प्लॉट क्या है, ये भी मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसका एडिशनल यूज़ ये होता है कि अगर आपने एडजस्टमेंट करनी हो प्रोसेस के अंदर तो फिर भी हम स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स आपको बता रही होती हैं कि अगर कोई मसला आ रहा है तो उसके कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट नाम है ना। अगर कोई मसला आ रहा है या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कौन कौन से पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम अगर आपके पास हो किसी भी प्रोसेस की तो आप उस प्रोसेस के अंदर जैसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको यूज़ करके उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हो। फिर हम परेटो चार्ट्स देखेंगे। परेटो चार्ट्स भी इसीलिए यूज़ होते हैं आपको डिसीजन मेकिंग के लिए कि जी अगर आपने क्वालिटी इश्यूज को एवेल्युएट करना है तो ये आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करते हैं कि कौन सा वाला एस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा वाला रिलेटिवली कम इम्पॉर्टेंट है। तो वो हम परेटो चार्ट से वो मदद लेते हैं। फ्लो चार्ट्स जो होते हैं वो आपके सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑपरेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताता है कि जी अभी इधर ये काम हो रहा है, अभी इसके बाद ये काम हो रहा है, फिर इसके बाद यहाँ इन्वेंट्री के अंदर जा रही है प्रोडक्ट, इन्वेंट्री से निकाल के उसको फिर प्रोडक्शन लाइन पे डाला जा रहा है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये फ्लो चार्ट बताता है कि जी अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जी पॉसिबल प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं या पॉसिबल टाइम हमारा कहाँ ज़ाया हो रहा है। तो अगर आपने सर्विस क्वालिटी बेहतर करनी है तो फिर फ्लो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट या फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हिस्टोग्राम्स भी आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर देते हैं कि जी किसी भी इस प्रोसेस में से कोई डिफेक्टिव चीज़ निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या कितने % चांसेस हैं। तो हिस्टोग्राम्स जो है ना वो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज़ के साथ रिलेट होते हैं और आपको प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस के अंदर इनको यूज़ किया जा सकता है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल पे आपका पूरा 6S का चैप्टर जो है वो हम इस पे गुजारेंगे। ये आपको बताता है किस तरीके से यू कैन यूज़ स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल योर प्रोसेस। अगर आपका प्रोसेस कोई चीज़ बना रहा है और उसको वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है या उस चीज़ की स्पेसिफिकेशन ख़राब हो गई है
तो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप उसको करेक्ट करोगे, ये सारे का सारा आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर बताया जाएगा, जो चैप्टर 6S है। इसको हम कभी कभी 6 सिग्मा भी ही कहते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, तो नॉर्मली लिटरेचर के अंदर ये 6 सिग्मा के नाम से भी आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। उसके बाद हमने देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जी इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन कहाँ करनी चाहिए, इंस्पेक्शन का फ़ायदा क्या होता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर, और एक एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं सर्विसेज के अंदर। ठीक है, हम ये देखेंगे। इसकी अगर मैं आपको आइडिया बताऊं कि जी इंस्पेक्शन आपकी 2 तरीकों से की जा सकती है। अगर मैं आपका ये पेन है, ठीक है, इस पेन के मैं कहता हूं कि जी ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना इसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब इसको मैयर करने के 2 तरीके हैं। जब ये पेन बन के आ गया तो इसकी विड्थ को या इसकी चौड़ाई, जो इसका चौड़ापन है या इसकी जो डायामीटर है, उसको चेक करने के 2 तरीके हैं कि मैं एक मेजरमेंट डिवाइस लूं और मैं हर पेन को देखूं कि जी ये 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है। हर पेन जो बन के आ रहा है मैं उसको देखूं कि 3 सेंटीमीटर है कि नहीं है, मैं मेजर करूं हर किसी को। तो उस केस के अंदर ये क्या होता है कि मैं 3 सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट कर रहा हूं तो ये वेरिएबल्स कंसिडर किए जाते हैं। अगर मैं इसी एक मेरे पास एक टेम्पलेट हो 3 सेंटीमीटर का और मैं उससे ये पेन गुजारूं और अगर ये पेन गुजर जाता है तो ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर का ही है, अगर ये पेन फंस जाता है तो ये 3 सेंटीमीटर का नहीं है। तो उस केस के अंदर हम इसको कहते हैं कि जी ये एट्रीब्यूट, इसका हमने एक एट्रीब्यूट मेजर किया, एट्रीब्यूट ऑफ थिकनेस मेजर किया। यहाँ जो वेरिएबल है वो उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ये होते हैं कि आपने उसका कोई थिकनेस, लेंथ, ये चीज़ें इस तरीके से मेजर की हैं। अब इस केस के अंदर जब मैं टेम्पलेट से गुजारूंगा तो इट विल बी आइदर डिफेक्टिव और इट विल नॉट बी डिफेक्टिव। ठीक है, तो ये आपके पास एक एट्रीब्यूट आ गया डिफेक्टिव का या नॉट डिफेक्टिव का। इसके अंदर आपके पास एक मेजरमेंट आ गई है। अगर ये 3.1 सेंटीमीटर भी है तो ये मेजरमेंट आ जाएगी कि 3 सेंटीमीटर नहीं था, 3.1 सेंटीमीटर था। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट या स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन किस तरह से की जा सकती है, इंस्पेक्शन कहाँ की जाती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 6 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का, सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है क्वालिटी मैनेजमेंट का हम इसके अंदर मेजर कर लेंगे। जो 6S है उसके अंदर हम ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देंगे। आखिर में हम देखेंगे जी TQM इन सर्विस किस तरीके से आप देख सकते, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस के अंदर आपको कहाँ नज़र आती है। ठीक है, अब आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर Quality and Strategy. An operations manager's objective is to build a total quality management system that identifies and satisfies customers' need. आपने कोई भी चीज़ बनानी है तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर्स नीड, कि जी कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ वो मांग रहा है। तो आप एज एन ऑपरेशंस मैनेजर आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिसकी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो रही हो, और वो इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट हो रही हो कि जी कस्टमर को एक सेटिस्फाइबल प्रोडक्ट मिल जाए। क्वालिटी का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि जी अच्छी चीज़ जो कस्टमर चाह रहा है उसको मिल जाए। मैनेजिंग क्वालिटी सपोर्ट्स डिफरेंशिएशन, लो कॉस्ट एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी। क्वालिटी हेल्प्स फर्म increase sales and reduce cost. Building a quality organization is a demanding task.
अब ये तो तीसरा पॉइंट तो हो गया कि जी जाहिरी बात है आपने अगर क्वालिटी इंप्लीमेंट करनी है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क, ठीक है, नॉट इजी। इसके अंदर आपको हर एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, किस तरीके से मैं प्रोसेस बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं नई चीज़ प्रोवाइड करूँ जो कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा, और ये सब कुछ आपने लो कॉस्ट पे करना है। तो वी ऑल, हम सारों को अब इस पॉइंट पे तो कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होगी कि जी इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ क्वालिटी प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स some demanding tasks। पहले जो दो पॉइंट्स हैं दे आर रिलेटेड। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के किस तरीके से आप अपने आप को दूसरों से अलहदा कर सकते हो। ये चैप्टर 2 की बात है। इसके अंदर हमने पहली स्ट्रेटेजी पढ़ी थी डिफरेंशिएशन, कि अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंपेटिटर से बेहतर कर लो या उसके अंदर ऐसी एस्पेक्ट्स डालो जो उनके अंदर नहीं है, तो देन यू आर डिफरेंशिएटिंग योर प्रोडक्ट। या तो आप अपनी प्रोडक्ट को लो कॉस्ट करो, तो उसमें भी आपके पास एक कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी आ रही है कि आपकी प्रोडक्ट दूसरी कंपेटिटर से सस्ती है। या तो आपकी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज हमने पढ़ी थी कि जी आप अपने ऑपरेशंस को इतना रिलायबल कर दो कि जो आपने टाइम दिया है उस टाइम पे आप अपनी प्रोडक्ट पहुंचाओ, या अगर कोई इनोवेशन आ रही है, इनोवेशन के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो उन इनोवेशन के अंदर जो चेंजेस हैं उनको आप तेजी से रिस्पॉन्ड करो। इसके अंदर हमने एचपी की एग्जांपल पढ़ी थी कि एचपी जैसे जैसे नए इनोवेशंस आती हैं तो वो अपने जो डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स के डिज़ाइन है उनको चेंज करता है। अब क्वालिटी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उससे आपकी सीधी सी बात है एक रेपुटेशन बनती है, उसकी वजह से आपकी सेल्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से आपकी कॉस्ट के अंदर रिडक्शन होती है। ये कैसे हो सकता है कि यार कॉस्ट के अंदर रिडक्शन, क्वालिटी आप इम्प्रूव कर रहे हो और आपकी कॉस्ट के अंदर रिडक्शन आ रही हो। जब आप क्वालिटी किसी भी प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो उस प्रोसेस से जो वेस्ट निकल रहा होता है, वो वेस्ट की जो क्वांटिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। वेस्ट, स्क्रैप, जो सारा आपके प्रोसेस के अंदर स्क्रैप है, वेस्ट है, अनयूज्ड आइटम्स हैं जो ख़राब हो जाते थे पहले, तो वो भी दे कॉस्ट यू मनी। अगर ख़राब चीज़ें निकल रही हैं तो आपके प्रोसेस की क्वालिटी कम है। अगर आप क्वालिटी बेहतर करोगे, अपने प्रोसेस से 100% चीज़ें सही निकालोगे, तो आपका स्क्रैप भी कम हो जाएगा, वेस्ट भी कम हो जाएगा और आपकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी इंप्रूव करने से आपके प्रोसेस का वेस्ट कम हो गया, स्क्रैप कम हो गया और आपके प्रोसेस की कॉस्ट भी इन दोनों की वजह से कम हुई। ये सारी की सारी क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की वजह से भी हुआ। ठीक है, इंप्रूवमेंट की वजह से ये तीन कॉन्सेप्ट्स आपके प्रोसेस के अंदर, ये तीन चीजें आपकी प्रोसेस के अंदर आई। क्वालिटी बेहतर की, वेस्ट कम हुआ, स्क्रैप कम हुआ और उसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई। ये वही बात, इंप्रूविंग क्वालिटी टू वेज। क्वालिटी इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट आपके कब इंक्रीज होते हैं? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की वजह से। प्रोडक्टिविटी क्या है कि अगर आप पहले एक दिन के अंदर 100 चीजें बना रहे थे और उनके अंदर सिर्फ 80 चीजें यूजेबल थी, बाकी जो 20 थी वो स्क्रैप थी या खराब थी या इस्तेमाल नहीं हो सकती या कस्टमर को नहीं दी जा सकती। अब भी आप 100 चीजें बना रहे हो मगर उनमें से 90 चीजें ठीक हैं और 10 चीजें खराब हैं, तो क्या हुआ? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। आपका इसी तरीके से रीवर्क एंड स्क्रैप कॉस्ट कम हो गई, आपकी वारंटी कॉस्ट कम हो गई। ये क्या कॉन्सेप्ट है? वारंटी कॉन्सेप्ट ये है कि जी आपने कोई चीज बनाई, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट बन गई है तो ओके,
अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने कस्टमर को एक वारंटी देनी पड़ती है कि जी 1 साल तक तुम इसको इस्तेमाल करके देख लो, अगर कोई मसला आता है तो मैं आपको सही कर दूंगा। तो जब अगर आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो तो फिर आपको वारंटी देनी पड़ती है। वारंटी की जाहिर बात है, जब वारंटी क्लेम्स आते हैं तो वो भी उसके भी एक खर्चा होता है। तो अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो तो जो आपकी वारंटी कॉस्ट होती है वो भी कम होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रीवर्क एंड स्क्रैप कम होता है और वारंटी कॉस्ट आपकी कम होती है। इसी की वजह से जब आप क्वालिटी बेहतर करते हो तो आपकी सेल्स के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो आपकी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट थी ना, अब सेल्स के अंदर, अब जाहिर बात है आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ बना रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स बेहतर हो जाता है कि अगर आपने 100 टाइप 1 चीज़ें बनानी है तो आप इजीली उनको बना सकते हो क्योंकि उसके अंदर कोई स्क्रैप या रीवर्क की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने 100 टाइप 2 की चीज़ें बनानी है तो वो भी आप इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर स्क्रैप या रीवर्क नहीं होगा। तो आपका जो रिस्पॉन्स है दैट विल इम्प्रूव। आप प्राइसिंग बेहतर कर सकते हो, फ्लेक्सिबल प्राइसिंग प्रोवाइड कर सकते हो। जाहिर बात है जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी की वजह से कॉस्ट कम होगी तो यू कैन ट्रांसफर दिस कॉस्ट टू योर कस्टमर और कस्टमर को बेहतर प्राइस आप दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट इन रेपुटेशन किस तरीके से होती है, जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओगे तो जाहिर बात है कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे ज़्यादा उसका ज़्यादा एतमाद होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो ये दोनों, ये जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे के सारे क्वालिटी से रिलेटेड है। इनमें से 3 सेल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और बाकी जो 3 हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने में मदद देती हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जी क्वालिटी अगर आप बेहतर करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ऑल्दो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क और इस पे हर कंपनी को आइदर इट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इट इज़ प्रोवाइडिंग सम मैन्युफैक्चर्ड गुड, इसको क्वालिटी पे उनको कंसंट्रेट करना चाहिए और सीरियसली सोचना चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ। Defining quality, the totality of features and characteristics of product or services that bears on its ability to satisfy the stated or implied needs. अब वही बात है, stated और implied needs of the customer. कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करे प्रोडक्ट, और वो सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करें वो आइदर दे आर स्टेटेड और दे आर इम्प्लाइड, दे मस्ट सेटिस्फाई द कस्टमर। और यही काम है क्वालिटी का कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, अच्छी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस पे डिफेक्ट फ्री पूरे फीचर्स के साथ कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाएं। इसी को ही क्वालिटी कहा जाता है। इसी को अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने यही आपको डेफिनेशन दी है क्वालिटी के कि जी कस्टमर की जो नीड्स है आइदर दोज नीड्स आर इम्प्लाइड और स्टेटेड। स्टेटेड और इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि कोई किसी कस्टमर ने खास तौर पे बताई हुई हो कि जी मुझे ये चाहिए, या वो कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो इम्प्लाइड नीड्स हो जाती हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के सारे फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी भी सर्विसेज के वो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसका कस्टमर चाहता है या उसका कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपने पूरी करनी है, और इसी को ही क्वालिटी कहा जाता है। और ये डेफिनेशन दी गई है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने। ठीक है, अब क्वालिटी के डिफरेंट व्यूज होते हैं। फर्स्ट व्यू इज यूजर बेस्ड, दूसरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, तीसरी प्रोडक्ट बेस्ड होती है। ठीक है, यूजर बेस्ड क्या होते हैं, जो आपका कस्टमर है वो क्वालिटी किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है या किस तरीके से मैयर कर रहा है, वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी परफॉर्मेंस पे मैयर कर रहा है। अब वो परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, उसकी कॉस्ट परफॉर्मेंस हो सकती है कि जी ये दूसरे से सस्ता है, उसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखें तो उसकी
स्पीड देख रहा होगा, या उसकी बहुत सारे मोबाइल्स आप लोग लेते हो तो मोबाइल के अंदर हम क्या देखते हैं, यार उसकी स्पीड कितनी है, अच्छा है, फंसता तो नहीं है, टच फीचर्स उसके कैसे हैं। तो उसकी कॉस्ट देख रहा होता है, उसके फीचर्स देख रहा होता है, वो फीचर्स को कंपेयर कर रहा होता है, उसके कैसे फीचर्स हैं, इसके कैसे फीचर्स हैं। तो ज़्यादातर आपकी जो यूज़र बेस्ड क्राइटेरियाज होते हैं क्वालिटी के, वो यही होते हैं कि जी परफॉर्मेंस क्या है उसकी, और उसकी आइदर कॉस्ट परफॉर्मेंस, और जो उसके फीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या, और कौन कौन से फीचर्स आपको मिल रहे हैं। एक फ़ोन के अंदर आपको टच स्क्रीन मिल रही है, दूसरी के अंदर टच स्क्रीन नहीं, सिर्फ गेस्चर मिल रहे हैं। तो परफॉर्मेंस फीचर्स क्या है, फीचर्स की परफॉर्मेंस क्या है, उनको कंपैरिजन अगर दूसरों से करें तो वो परफॉर्मेंस निकल आती है उनकी, और उनकी कॉस्ट क्या है। जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेजर कर रहे होते हो क्वालिटी, वो देखी जा रही होती है कि जी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कितने परसेंट आपने जो चीज़ बनाना चाह रहे थे वो बन रही है कि नहीं बन रही, और कितनी कॉस्ट के अंदर बन रही है, और जो जिस स्टैंडर्ड पे बनाना चाह रहे थे उस स्टैंडर्ड पे बन रही है। कि अगर आपने एक प्रोसेस है जिसके अंदर सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट किया, और उसके अंदर एक खास डिफेक्ट रेट आपने कह दिया कि जी 1 मिलियन चीज़ों के अंदर इतने डिफेक्ट्स होने चाहिए, नॉर्मली अबाउट 1 मिलियन के अंदर सिक्स सिग्मा के अंदर अगर सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो 1 मिलियन के अंदर 3.4 डिफेक्ट्स आपको मिलेंगे। 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिफेक्ट के अंदर आपको सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स मिलेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये देखा जा रहा होता है कि जो हमने प्रोसेस डिज़ाइन किया है, या जिस प्रोसेस से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो स्टैंडर्ड पे चल रही है, और क्या वो सही चीज़ बना रही है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो क्वालिटी का यूज़र का एक पर्सपेक्टिव होता है, मैन्युफैक्चरर का या प्रोड्यूसर का एक और पर्सपेक्टिव होता है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है कि जी दीज आर दी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये वही बात आ गई कि जी प्रोडक्ट किस तरीके से दूसरों से डिफरेंशिएट कर रही है, इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है, किस तरीके से इन फीचर्स को हम मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी ये दूसरों से ज़रा डिफरेंट है, हमारे कंपेटिटर के पास हमारा कंपेटिटर ये फीचर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, हम ये वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी में क्या होती है, क्वालिटी के अंदर उसके फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट के कौन कौन से फीचर्स हैं और उन फीचर्स की क्या परफॉर्मेंस है। मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो प्रोसेस स्टैंडर्ड पे है, या वो प्रोसेस सही तरीके से काम कर रहा है, कोई स्क्रैप तो नहीं क्रिएट कर रहा, कोई उसके अंदर रीवर्क तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और प्रोडक्ट बेस के अंदर वही बात कि जी कौन कौन सी हमारे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं जो दूसरों के अंदर नहीं है। तो ये डिफरेंट क्वालिटी के एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट व्यूज़ जो है आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफ़ा जाके अपनी बुक के अंदर इस टेक्स्ट को रीड करें, और अगर कोई एम्बिग्विटी है तो उसको क्लियर करें इन तीन बेसिक जो व्यूज़ हैं क्वालिटी के। क्वालिटी की इम्प्लीकेशंस क्या है? क्वालिटी अगर आपकी कंपनी इम्प्लीमेंट करेगी, अच्छी करेगी, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? इफ़ योर कंपनी इम्प्रूव्स क्वालिटी, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? अगर आपकी कंपनी रिड्यूस करती है क्वालिटी को, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इम्प्लीकेशंस हैं, या उसके क्या फायदे या नुकसान है। ठीक है, सबसे पहली बात होती है कि जी कंपनी की रेपुटेशन। अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी तो क्या होगा? अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की परसेप्शन अच्छी है तो आप अगर कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसकी भी जो क्वालिटी के बारे में परसेप्शन होगी वो अच्छी होगी। जिस तरह हमने देखा था नोकिया के केस के अंदर, नोकिया के जो मोबाइल्स थे उनकी क्वालिटी की परसेप्शन अच्छी थी, तो जब भी वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उनकी भी नई प्रोडक्ट की भी परसेप्शन होती है कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट होगी। ठीक है,
इसी तरीके से एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस आपकी कंपनी की रेपुटेशन या क्वालिटी पे अफेक्ट करती हैं। जाहिर बात है, अगर आपकी कंपनी के अंदर क्वालिटी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो आपके जितने एम्प्लॉई हैं उनकी थिंकिंग भी क्वालिटी की तरफ होगी। अगर आपकी क्वालिटी कंपनी के अंदर क्वालिटी प्रैक्टिसेस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्वालिटी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो जितनी भी आपके प्रैक्टिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग की, हायरिंग की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, एम्प्लॉयमेंट की, हायरिंग की, फायरिंग की, ये सारी की सारी अफेक्ट करती हैं क्वालिटी की वजह से। अगर आपकी कंपनी क्वालिटी के बारे में सीरियस है तो वो ऐसे लोगों को हायर करेगी या ऐसे लोगों को एक्वायर करेगी जो इस एस्पेक्ट को सीरियसली लेते हैं। इसी तरीके से सप्लायर रिलेशनशिप भी आपकी कंपनी की क्वालिटी रेपुटेशन के साथ रिलेट करते हैं। अगर आपके ऐसी क्वालिटी बना रहे हो, जो ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी क्वालिटी आप चाहते हो कि अच्छी हो और आपकी कंपनी की एक रेपुटेशन है अच्छी प्रोडक्ट बनाने की, तो आपके सप्लायर्स के रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म होंगे और उस लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा। प्रोडक्ट आपको ज़रा रॉ मटेरियल महंगा तो मिलेगा, मगर आपके एक जो रिलेशनशिप है सप्लायर के साथ कि जी ये सप्लायर आपको अच्छी प्रोडक्ट देगा और एक रीजनेबल प्राइस पे देगा, तो आपकी सारी क्वालिटी के इम्प्लीकेशंस पड़ती हैं, कंपनी की रेपुटेशन पे पड़ती हैं। किस तरीके से पड़ती हैं? प्रोडक्ट की परसेप्शन में पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में पड़ेंगी और सप्लायर रिलेशनशिप्स के अंदर पड़ेंगी। दूसरी जो क्वालिटी की इम्प्लीकेशन है, क्वालिटी की इम्प्लीकेशन प्रोडक्ट लायबिलिटी की वजह से पड़ती है। लायबिलिटी का मतलब होता है जब भी किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसका कौन जिम्मेदार है। आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस की है और उस प्रोडक्ट से किसी को नुकसान पहुंच जाता है तो आप पे उस प्रोडक्ट की लायबिलिटी आ जाती है या आप पे वो रिस्क है। अगर लेट से कि जी आपकी कंपनी गाड़ियों की वो बनाती है, फ्यूल टैंक्स बनाती है, और वो फ्यूल टैंक्स अगर किसी एक्सीडेंट के अंदर फट जाते हैं तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? आप ही जिम्मेदार हो ना। आपकी प्रोडक्ट थी वो फेल कर गई तो फिर अगर आप क्वालिटी इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपकी प्रोडक्ट लायबिलिटीज जो है वो भी अफेक्ट होती हैं। क्वालिटी के इम्प्रूव करने से भी इस पे अफेक्ट आएगा, क्वालिटी के रिड्यूस करने से भी इस पे अफेक्ट आएगा। तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन, प्रोडक्ट लायबिलिटी, ये सारी की सारी इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी हैं या क्वालिटी के साथ रिलेट करती हैं। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या है क्वालिटी इम्प्रूव करने की? ग्लोबल इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जी आप ग्लोबल, अगर आप लोकल मार्केट के अंदर क्वालिटी को बेहतर कर रहे हो, अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो आप ग्लोबली भी आप compete करने के काबिल होगे। ठीक है, आपकी कंपनी का बिजनेस, अगर आपकी कंपनी ISO 9000 इम्प्लीमेंट कर देती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज एलिजिबल फॉर ग्लोबल बिजनेस। अब ग्लोबली किसी कंपनी को कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा और वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो और वो प्रोडक्ट ISO 9000 सर्टिफाइड है, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी होनी है। तो आप क्वालिटी बढ़ाओगे तो उसका फायदा क्या होता है? आपका जो बिजनेस की एक्सपेंशन है वो भी बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं एंड यू आर मोर केपेबल ऑफ कंपीटिंग इन ग्लोबल एनवायरनमेंट। कौन कौन सी की डायमेंशंस हैं क्वालिटी के? क्वालिटी की की डायमेंशंस हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर। अगर आप क्वालिटी देख रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ उसकी डायमेंशंस हैं। कुछ परफॉर्मेंस की हैं, फीचर्स, रिलायबिलिटी, कन्फॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, एस्थेटिक, परसीव्ड वैल्यू एंड वैल्यू। परसीव्ड वैल्यू और वैल्यू में जरा सा फर्क है। परसीव्ड वैल्यू ये होती है कि जी आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या परसीव कर रहा है, क्या समझ रहा है कि जी मैंने कोई चीज खरीदी। आप देखिए, आप एक चीज बनाते हो तो इट गिव्स यू सर्टेन वैल्यू, ठीक है। आप उसको खरीदते हो, क्यों खरीदते हो? कि आपका कोई
काम वो पूरा कर रहा होता है, आपके लिए एक वैल्यू होती है उस प्रोडक्ट की कि जी ये चीज़ मैं इसलिए खरीदा हूँ कि मुझे इससे ये फ़ायदा होगा। अब बाज़ लोगों को उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, बाज़ लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो सारों को हो रहा है, मगर जो परसेप्शन होती है, परसेप्शन ऑफ वैल्यू, वो कम या ज़्यादा होती है कि जी अगर मैं ऐसा मोबाइल लेता हूँ जो बिज़नेस यूज़र के लिए है और मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, तो परसीव्ड वैल्यू उस प्रोडक्ट की मेरे लिए कम है एज कंपेयर टू उस बिजनेसमैन के लिए जिसने ये फोन लिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो बिजनेसमैन के लिए बनी है वो उनकी परसीव्ड वैल्यू दूसरे कस्टमर्स के लिए जरा कम है, और ऐसी वैल्यू जो नॉर्मल कस्टमर्स के लिए बनी है उनकी परसीव्ड वैल्यू बिजनेस कस्टमर्स के लिए जरा कम है। तो ये परसेप्शन ऑफ वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट होती है। परसेप्शन एंड वैल्यू, परसीव्ड क्वालिटी एंड वैल्यू। तो परसेप्शन जो जहां भी आपके पास आएगी वो कि जी मुझे कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है, और उसकी परसेप्शन कस्टमर की वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो क्वालिटी किन किन चीजों पे आप बेस करते हो? सबसे पहले तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पे क्वालिटी को मेजर करेगा। दूसरी चीज वो देखेगा कि जी कौन कौन से फीचर्स मुझे प्रोवाइड हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों के अंदर हो सकते हैं। सर्विस की भी परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज होते हैं, प्रोडक्ट के भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होते हैं। सर्विस के भी फीचर्स होते हैं, प्रोडक्ट के भी फीचर्स होते हैं। सर्विस भी रिलायबल होती है, प्रोडक्ट भी रिलायबल होती है। सर्विस टाइम पे पहुंचे, अगर आप पिज़्ज़ा डिलीवरी क्या है, इट्स अ सर्विस। सर्विस अगर 30 मिनट्स में पहुंच रही है तो क्या है, इट्स अ रिलायबल सर्विस। अगर नहीं पहुंच रही तो इट्स नॉट अ रिलायबल सर्विस। प्रोडक्ट अगर अपनी वारंटी टाइम पीरियड में चल रही है तो इट्स अ रिलायबल। अगर वारंटी टाइम पीरियड में नहीं खराब हो गई है तो इट्स नॉट अ रिलायबल। कन्फॉर्मेंस के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उससे वो कन्फर्म कर रही है कि नहीं कर रही, तो ये कन्फॉर्मेंस आ जाती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल टेक्निक्स, इंटरनेशनल ओवरऑल। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे बन रही है तो उसके अंदर क्वालिटी, उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसके फीचर्स, ये सारे के सारे कन्फॉर्मेंस टू डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। अब देखें आप ऐसी चीज बना रहे हो जो इंटरनेशनल लेवल पे कंफर्म कर रही है इन रिलायबिलिटी, इन फीचर्स, इन परफॉर्मेंस, इन ड्यूरेबिलिटी, इन एस्थेटिक्स, तो ये सारी की सारी कंफॉर्मेंस होती है। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ती है, आपको फीचर्स, रिलायबिलिटी उसकी बेहतर करनी पड़ती है, और आपको एक कंफॉर्मेंस टू दी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स उसका बेहतर करना होता है। अब अगर आप एक ऐसा मोबाइल बना रहे हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे नहीं चल रहा, एंड्रॉयड पे नहीं चल रहा, तो वो क्या है, वो कंफर्म नहीं कर रहा। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना रहे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कंफर्म नहीं कर रही, तो फिर वो आपकी इट्स नॉट अ क्वालिटी प्रोडक्ट, या उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो रही है। इसी तरीके से ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी ये होती है कि जी आपने कितने आसानी से अपनी प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हो या सही करा सकते हो। ठीक है, तो उसको सर्विसेबिलिटी कहा जाता है। एस्थेटिक्स उसके क्या है, कितनी खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है, कैसी लगती है लोगों को, ये उसके सारे के सारे एस्थेटिक्स हो जाते हैं। उसकी परसीव्ड क्वालिटी क्या है कि कस्टमर उसकी क्वालिटी को किस तरह से परसीव कर रहा है। एक तो उसकी ट्रू क्वालिटी है ना, एक उसकी परसीव्ड क्वालिटी है कि कस्टमर किस तरह से उसको परसीव करता है, और ओवरऑल वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को कि अगर मैं ये चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी सारी डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी हैं कि क्वालिटी का मतलब इन सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि कौन कौन से क्वालिटी के अवार्ड्स हैं। जो मोस्ट नोटेबल अवार्ड है वो मैल्कम ब्रिज नेशनल अवार्ड है। ये 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, एंड इट प्रमोट्स TQM प्रैक्टिसेस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक प्रैक्टिसेस, ये प्रमोट करता है। सम ऑफ द कंपनीज विच वी नो इज लेक्सस। बाकी भी कंपनियां अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं, मगर लेक्सस इज अ ब्रांड जो टोयोटा का है, जो हमें पता है।
अब इसके अंदर कौन कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, इसके अंदर ओवरऑल ये क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है, कि आपकी कंपनी के अंदर लीडरशिप किस तरीके, कैसी है लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपकी कंपनी कैसे करती है, कस्टमर और मार्केट फोकस किस तरीके से गेन करती है, मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट अपना किस तरीके से करती है, वर्क फोर्स के अंदर किस तरह से फोकस क्रिएट करती है और अपने प्रोसेस को किस तरह मैनेज करती है। इन सारे कामों के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स रखे हैं। हर कंपनी को वो अवेल्युएट करते हैं इन कैटेगरीज में और उनके मैक्सिमम पॉइंट्स इन कैटेगरीज के ये हैं। और जब इन हर कंपनी के कोई पॉइंट्स आते हैं टोटल में से उसको देखा जाता है, जिस कंपनी के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उसको ये अवार्ड मिल जाता है। तो इसके अंदर आप देखें कि जो कैटेगरीज हैं ये तो ग्रोसली बड़ी बड़ी कैटेगरीज है ना, इनके अंदर और सब कैटेगरीज हैं, मगर ओवरऑल जो कैटेगरीज हैं वो लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किस तरह करते हैं, कस्टमर और मार्केट फोकस किस तरह से, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से निकालते हैं या मेजर करते हैं, उसको मेजर करना, एनालाइज करना, उसको कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन से नॉलेज में, वो किस तरीके से करते हैं, वर्क फोर्स को किस तरीके से आप फोकस करते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट की अब कस्टमर से ये रिक्वायरमेंट आई है, अब तुमने ऐसी चीज़ बनानी है, और प्रोसेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें बॉल्ड्रिज, मैल्कम बॉल्ड्रिज अवार्ड मेजर करता है और ये सारे का सारा उसका प्रोसीजर है मेजर करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। अभी तक आज के लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कशन की है कि जी सबसे पहले तो हमने पिछले चैप्टर का एक प्रॉब्लम ख़त्म की और हमने ओवरऑल डिस्कशन की कि जी अभी तक हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 6 है उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जी क्वालिटी होती क्या है, स्ट्रेटजी पे किस तरह अफेक्ट करती है, क्वालिटी को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और क्वालिटी को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, और हमने देखा कि जी मैल्कम बॉल्ड्रिज अवार्ड किस तरीके से क्वालिटी को मेजर करता है। आज के लेक्चर के लिए हम इधर ही ख़त्म करते हैं और इससे आगे फिर हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।